Hello, dear students. Welcome to the social science lecture. After the completion of this lecture, you are able to identify how to plan and conserve of our resources. लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप इस लेक्चर में से ये सीख ले पाएंगे कि कैसे हम अपने स्रोत जो है ऊर्जा के उसका आयोजन और उसका संरक्षण कर सकते हैं. ठीक है. So let us start this session. यहाँ पे हम लास्ट में ठहरे थे इस पैराग्राफ के ऊपर. You could understand details of two types. As I already told you, we discussed two topics of the natural resources chapter. The classification according to the distribution of the sources, and let me show you according to the distribution area and according to the ownership, resources are classified. Now, what are the other classifications are there? Here we will discuss. Resources can be classified by other methods also, wherein this can be classified into two types as renewable and non-renewable sources, right? Some resources reproduce themselves as per their uses during a specific time. In other words, these are inexhaustible. कभी ना खत्म होने वाले, meaning inexhaustible, और we can call as रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका इस्तेमाल एक बार करने के बाद उसे वापस आप थोड़े समय के अंदर इस्तेमाल कर सको और वापस वो आपको अवेलेबल हो पाए. ऐसा रिसोर्सेज को रिन्यूएबल या तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाता है, जैसा कि आप साइंस के अंदर भी पढ़ रहे हो. सोलर इंसोलेशन, वाइन, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्सेज एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी. दिस आर द renewable sources of energy. These are called renewable resources. Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used. Non-renewable का मतलब होता है कि एक बार उपयोग कर लेने के बाद वो वापस आपको अवेलेबल नहीं होता. It takes time to regenerate और it cannot be reformed in near future. नज़दीक के भविष्य में उसे आप रिन्यू नहीं कर सकते. वो उतना ही अमाउंट कुछ सालों बाद वापस जनरेट होता है, इमीडिएटली नहीं होता. मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. सो बेसिकली द कंसर्न चैप्टर ऑफ साइंस sources of energy is also focusing on this parameter, renewable and non-renewable sources of energy. So I hope you understand very well in the science also. Now moving to the next topic, planning and conservation of resources, right? Human needs are unlimited while the resources are limited. This is the exact problem, the core problem associated with the resources, that the amount of the non-renewable resources are very limited. But the need of human is day to day rising because of the population blast and because of our increasing needs. During last 100 years, usage of resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion. So these are the two reasons. Please make sure that you have underlined it. During last 100 years से लेके population explosion तक. पिछले 100 सालों के अंदर जो रिसोर्स का इस्तेमाल है वो बहुत ही भारी मात्रा में इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है. जिसका रीज़न क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. विज्ञान के अंदर हुआ विकास और वस्ती विस्फोट के कारण ये सारी चीज़ें सामने आई है. सीवियर implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. सीरियस implications मतलब कई खराब परिणाम हमें मिल सकते हैं अगर हमने गंभीरता से इस दिशा में सोचना शुरू नहीं किया तो. क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसकी अमाउंट लिमिटेड है. वंस वी कंज्यूम्ड
the total amount of non-renewable resources, our future generation will not get the utilization of it. So it is the duty of all of us to conserve resources for the future generation. Resources should be conserved and should be used rationally. रैशनली मतलब बहुत ही व्याजबी तौर पे उसे इस्तेमाल करना होगा हमें रिसोर्सेज को. एक वर्ड यहाँ पे करेक्ट करना होगा. आई ऑल्सो हैव वन डाउट. कन्वर्सेशन की जगह यहाँ पे कंजर्वेशन आएगा. I also have doubt when I read that word in starting of the lecture, but after this my doubt is clear. It is not conversation. Conversation मतलब बातचीत होता है. It is a conservation of resources, right? So this is a mistake of textbook. Please make sure you should correct it. The word conservation is directly related to the scarcity of resources. अछत. Scarcity का मतलब होता है अछत, कि रिसोर्सेज की कमी हमारे पास है और वो डायरेक्टली कंजर्वेशन वर्ड जो है उसके साथ एसोसिएटेड है. इफ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड एट द करंट रेट वेयर दे आर एक्सप्लॉइटेड हैphazardly एंड irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. अभी के ज़माने के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है, हैphazardly का मतलब बिना सोचे समझे, irrationally मतलब जैसा मन चाहे वैसा हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसा श्योर है, एक सपना है कि हम जो करंट लाइफस्टाइल है उस हिसाब से हम जी नहीं पाएंगे. इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक रैशनल यूजेस. इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूजेज, इट्स कंजर्वेशन एंड रीयूजेज. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण. संरक्षण करना मतलब उसका योग्य तरीके से उपयोग करना, उसको संभाल के रखना और वापस रीयूज करना. मतलब एक चीज उपयोग में आ गई हो उसका 100% यूटिलाइजेशन करके वापस उसे यूटिलाइजेशन करना. When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called its conservation. यहाँ से टिक मार्क करिएगा ये पूरी लाइन. When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called its conservation. कभी भी हमारी लाइफ के ऊपर यानी कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर या तो पेड़ों की लाइफ के ऊपर खतरा मंडरा है, तभी उसके लिए जो हम व्यवस्थाएं करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन. प्लांट, सेव ट्रीज, सेव प्लांट्स, सेव वाटर, ऐसे कई योजनाएं या तो इनिशिएटिव आप देखते हो. Let us understand about the planning and the conservation of resources in detail. चलिए कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को उसके बारे में जानकारी लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट. आपको क्या करना है? अगर आपको कंजर्वेशन प्लान करना है कि हमें कोई चीज़ का संरक्षण करना है, उसे बचा के रखना है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उसकी उपलब्धताएं कितनी है, उपयोग कितना हो चुका है उसका, बिना उपयोग के कितना रिसोर्स वो पड़ा है और संभावनाएं कितनी है कि वो रिसोर्स हमें फ्यूचर में मिलेगा. इस सभी का डेटा एनालिसिस करके उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास मतलब गैदर करके कलेक्ट करके कोई कंट्री की संभाल के रखना होता है. बिकॉज वी नीड सम डेटा टू आइडेंटिफाई दैट विच रिसोर्सेज आर अंडर डेंजर. सेकेंड, द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज्ड ओनली वेयर इट इज नेसेसरी टू यूज देम. ऐसे स्रोत कि जो बहुत ही मर्यादित है और नॉन रिन्यूएबल है, वापस नहीं मिलने वाले, उसका इस्तेमाल बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे होना चाहिए और या तो जब भी ज़रूरत पड़े तभी उसे इस्तेमाल करना चाहिए. एक उदाहरण आपको दूँ कि आप अभी छोटे हो, आप स्कूल पे जाते हो, ट्यूशन क्लास पे जाते हो या तो कहीं बाहर जाने के लिए अगर आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हो तो लीगली यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट थिंग. ओके, आपको लीगली तो ये परमिशन नहीं मिलती, बट मोरली एज अ इंडियन सिटीजन और एज अ सिटीजन वी हैव सम ड्यूटी. If we need to go at a short distance, we need to utilize cycles, bicycles or by walk. So it will not consume any fossil fuels. So it is a matter of conservation. Okay? So जब भी ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करो.
कभी जल्दी हो कि भाई आज लेट हो गया है, आज हम नहीं पहुंच पाएंगे चल के या बाइक से, सॉरी चल के या तो बाइसिकल से, तभी ही आप इस्तेमाल करो मोटरसाइकिल का। मैं तो कहूँ ना ही करो, इतनी जल्दी कभी होती नहीं है। प्रिपेयर योर सेल्फ एंड प्लान योर सेल्फ। ओके, सो इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक। थर्ड, attempts should be made to develop those resource the quantity of which can be increased। ऐसे प्रयास होने चाहिए कि उस रिसोर्सेज के अंदर बढ़ावा हो, उसकी क्वांटिटी के अंदर बढ़ावा हो। अगर हम उसे संभाल के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी बढ़ ही जाएगी। यहां पे आते हैं, The resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for future use। जो रिसोर्स सस्ते हैं और हमें इजीली यानी कि सरलता से मिल जाते हैं, जैसे कि वुड है, लकड़ा, वो काफ़ी सस्ता भी है और अच्छे से मिल भी जाता है, उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ इट शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली फॉर फ्यूचर यूज। उसका इस्तेमाल हमें स्पेयर करना चाहिए यानी कि संभाल के रखना चाहिए और भविष्य में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दोज रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व्ड। जो रिसोर्सेज मर्यादित मात्रा में उपलब्ध है उसको हमें संरक्षित या तो संभाल के रखना चाहिए। फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म। उसका वैकल्पिक उपयोग या तो उसका वैकल्पिक खोजना चाहिए कि जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी जो है वो कम घटे। जैसे कि सर कैसे कर सकते हैं ये चीज़, आपने अभी पढ़ा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रेवा में 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का ओपनिंग किया। क्यों भाई सोलर पावर प्लांट का ओपनिंग किया? थर्मल पावर स्टेशन तो उससे कम जगह में, उससे कम खर्चे में एस्टेब्लिश हो सकता है, लेकिन सोलर एनर्जी जो है वो हमें फ्रीली अवेलेबल है और उससे ना तो कोई पॉल्यूशन होता है, ना ही उसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, और वो हमें जब तक सूरज है तब तक वो एनर्जी मिलती रहेगी। इट इज़ नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सो दैट इज वाई दिस इज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। फॉसिल फ्यूल की जगह पे सोलर पावर प्लांट्स और विंड पावर प्लांट्स अभी के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश हो रहे हैं। नेक्स्ट, necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly। कायदे कानून और नियम स्ट्रिक्ट तरीके से इस्तेमाल होने चाहिए कि जिसकी वजह से जो इस्तेमाल है उसका घटे या तो उसकी तादाद बरकरार रहे। नेक्स्ट पॉइंट, citizen should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources and a public awareness should be cultivated। ये पहलू खास ध्यान में रखने वाला है क्योंकि एक व्यक्ति के या तो 10-15 लोगों के प्रयास से इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। We should aware major और number of peoples regarding to the conservation so we get the necessary results to conserve the resources। हमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इससे अवगत कराना होगा कि आप इस रिसोर्स का इस्तेमाल अगर रैशनली नहीं करोगे, ब्याजवी तौर पे नहीं करोगे, तो ये रिसोर्स जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे और ऐसा मुकाम आ जाएगा आने वाले 50-100 सालों में कि आपके जो पीढ़ी है आने वाली, वो बाइक की जगह साइकिलों के अंदर घूमती दिखाई देगी। वापस वो पुरानी हमारी सिस्टम चालू हो जाएगी, बिकॉज पेट्रोल हो जाएगा 200 रुपये लीटर, तो किसको पर पड़ेगा? अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? सो the awareness should be created among the large number of people so that can we achieve the good result for the conservation। So now you are able to plan and how to conserve the resources। So this is the end of lecture. As you already know, I already told you, after the ending of this lecture you are able to plan and conserve, you are able to plan and learn how to conserve the resources। These are the steps that you need to follow। ये सभी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और टिक मार्क भी से करना है। चलिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।